मेरी आवाज आ रही है? शो मी द थम्स अप, दैट्स नाइस है। अर्जुना, भारत रत्ना, अरोरा, यस दैट्स नाइस। सो हाउज योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन? कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स? गुड, दैट्स नाइस। हाँ, अब जल्दी से बता दो किस किस के अंदर अभी बहुत सारी एनर्जी है। Yes, who is having good amount of energy? Yes, I can see from the Bharat Ratna everyone. Arjuna also, Aurora also. That's nice, huh? That's nice. और जिसमें नहीं थी, दूसरों को देख के उनके हाथ भी फिर से हो गए. And that means you are getting energy from your friends or your classmates also. That's nice, wonderful. Yes, hands down, जल्दी से. So today's topic, आज का जो topic है, it's about, we can say it's related with our discipline life also. It is about how we want things around us. ठीक है, कैसे हमारे चारों तरफ चीजें होनी चाहिए. ठीक है, so it's all about this. I'm not going into the chapter name. I'm not going to tell you directly. We will come to the topic eventually. ठीक है, हम धीरे धीरे चैप्टर पे खुद आएंगे. Now before this, ठीक है, just let me admit Booker also join. Okay, so yes, so that is what we are going to do in today's session. आप सब अपने चारों तरफ ध्यान से देखो. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग को ध्यान से देखो. एक दूसरे को नहीं देखना, चीजों को देखना है. मटीरियल्स. ओके, आई थिंक एवरीवन इज गुड ऑब्जर्वर. आई कैन सी दैट. सब इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं. बिग गाइस. ओके, so that's nice. So Booker, you also join. So what you have to do beta, everyone has to look around your surrounding. अपनी जो surrounding है उसके चारों तरफ देखो. Observe it carefully. ध्यान से इसको देखो, क्या क्या चीजें आपके चारों तरफ present है. ठीक है, pay attention to the surrounding, to your surrounding. ठीक है, yes. So अपनी surrounding को ध्यान से देखने के बाद, materials को ध्यान से देखने के बाद, what you have to observe, क्या ये सारी चीजें, all these things are made up of same thing or they are different? Yes, they are same or different. Can we do one thing? Can we do this class more interactive? For that, क्या करना होगा? Unmute yourself. सबसे पहले Zoom से अपने आप को unmute करो, everyone. ठीक है, और खुद अपने आप, you have to maintain the discipline of the class. ठीक है, शोर नहीं मचाना. Otherwise, ठीक है, it will be difficult for me and for you also then. ठीक है, so yes, Booker, you also turn on your mic. Booker also, yes, turn on your mic, Booker. Yes, that's good, that's good. And I expect everyone to maintain the discipline of the class. ठीक है, सबने class का discipline maintain करना है. You don't have to make noise. ठीक है, so now Abel also join us. ठीक है, Abel, give me the camera control. Okay. So yes, with this, yes. So Abel, you have joined now. So what you have to do, you have to look at around your surrounding and observe the things very minutely. बहुत ध्यान से अपनी अपनी जो है surrounding को observe करना है. ठीक है? Abel, you also turn on your mic. Turn on your mic from the Zoom. ठीक है? And you have to maintain your class discipline. किसी को शोर नहीं करना. Abel, Zoom से mic on कर दो. So you have observed, सबने observe कर लिया. Everyone has observed the surrounding very well. Okay. So my question is, आपने जो अभी देखा, ठीक है, जो materials you have observed, are they made up of same thing or they are different? Okay. Okay. You okay. चलो अब let's see क्या क्या आपने देखा. चलो बताओ. What you have observed? Materials कौन कौन से देखे? Okay, okay, got it, got it, got it. So you have observed many things, huh? You observed your desk, you have bags, you have, we can say shoes, you can see walls, you can see floor, you can see fan. There are many things around you, है These are materials only. And all these materials are made up of different things. Yes, यही आपने कहा, अलग अलग चीजों का बना है.
But why? But why they are made up of different materials? क्यों बने हैं? Yes. Why your desk? Let's say why your desk are made up of wood? Why they are not made up of paper? What would happen? क्या होता अगर ये आपके जो डेस्क हैं ये किसके बने होते? पेपर के बने होते. It would be easy for you to sit. No. क्या होता? है ना, पेपर डेस्क विल कोलैप्स, है ना, गिर जाते, है ना, यही होता. लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी आपके जो बुक्स हैं या कॉपीज हैं, नोटबुक्स है, वेयर यू आर नोटिंग डाउन योर कंटेंट, ठीक है, इफ दे वर मेड अप ऑफ ग्लास, yes, so you were not able to write anything on it. Okay, so it means जो चीजें बनी हुई है, materials that is around you, ठीक है, वो डिफरेंट चीजों का जो बना है, देयर इज ए पर्पस, उसके पीछे कोई एक मोटिव है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कैसे भी बना लिया है ना. अब आप सब जैसे बैठे हो, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज वे में बैठे हो या अनऑर्गेनाइज वे में बैठे हो? ऑर्गेनाइज वे, यस, because you are sitting in your place, ठीक है, all are well seated, we can see that roll number wise, your whatever in which format you are sitting, you are organized, ठीक है. If suppose you 5 sections are sitting in 2 rooms, 5 की जगह अगर 2 कमरे में बैठे होते, so क्या ये ऑर्गेनाइज होता? है ना, कुछ खड़े होते, कुछ बैठे होते, है ना, एवरीथिंग वुड बी मेस अप, ठीक है. सो which format do you like the most, organized or unorganized? Oh, that's really nice, you like organized. So let's see you, let me show you. So this is organized room, ठीक है. एक कोई स्टूडेंट है आप ही के जैसा, जिसे अपना रूम बहुत अच्छी तरह सजा के रखना, या फिर वी कैन से टू कीप इट लाइक दिस. ओके, दैट स्टूडेंट लाइक्स टू कीप इट लाइक दिस, ठीक है. उसने अपना रूम वेल ऑर्गेनाइज किया है, टॉयज आर हियर, हियर यू कैन सी DIY किट्स आर हियर, बुक्स आर हियर, टॉयज आर हियर, seating area or we can say study area is here, bed is here, clothes are well organized in almirah, you can see everything is organized. But here is one more student or one more kid who has done this to his or her room. किस किस का कमरा ऐसा होता है? चलो, tell me, raise your hand. How many of you make your room like this? I can see one girl raised her hand, able say, okay, boy also from same section, okay, Booker say, I can see, yes, Bharat Ratna, from anyone from you, I can see one student middle row third last bench किया था, फिर नीचे उठा लिया, नीचे कर दिया हैंड, ठीक है. okay, in Arjuna, oh, one girl, one boy, okay, even one more girl from the Arjuna section. Aurora say, many students, oh, you keep your room like this, huh? And you were saying that you like organized format instead of unorganized. तो फिर आप अपने कमरे को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रखते? अब बताओ कौन से वाले रूम में, वन रूम इज हेयर एंड द सेकेंड वॉज दिस, है ना, ये था. इन विच केस यू विल फाइंड योर थिंग्स इजिली, है ना. इसमें हमें पता लग रहा है, वी कैन फाइंड आउट दिस toy truck here, you can see toy car is here, books are placed here. But coming to the second room, where is that truck? Okay, truck is here, clothes are messed up, everything is messed up. Are you able to find your stuff from these mess up things? पहले तो इस पे स्टेप कौन करेगा, इसमें जाएगा कौन? इट्स लाइक यू कैन से मेज, है ना, गेम होती है ना, it will be like that कि पहले ढूंढो, then you have to use that thing, है ना. So it's very mess up thing. आज हमने कहा कि हमें organized format ज्यादा पसंद है as compared to unorganized way.
अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वेयर वी आर यूजिंग इट? लेट्स गो टू योर स्कूल लाइब्रेरी. आपके स्कूल लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी जाते हो? रेज योर हैंड इफ यू गो. जाते हो? यस, यू गो देयर. नाउ इन स्कूल लाइब्रेरी इफ यू हैव टू फाइंड आउट कॉमिक बुक्स, क्या वो इजी होता है फाइंड आउट? यस, इट्स इजी फॉर यू टू फाइंड आउट योर कॉमिक बुक्स. यस और नो? हाउ? कैसे इतनी बड़ी लाइब्रेरी से आपको पता लगता है कि कॉमिक बुक्स वहां पर है? There are different closets or we can say different cabinet sections and even mention over there. लिखा होता है? Yes, this section is there. ये वाली books इधर है, ये वाली books here. Similarly, here also you can see fictional books, children's books, language books, reference book, history, geography, science, computer, technology. So if I want to, read some book based on technology or computer, I will directly go there and get the book. Yes, it's easy. अगर यही सब नीचे गिरा होता या फिर मिक्सअप होता, कैसा होता? इजी होता? It would be difficult for me, है ना? It would be difficult for you to get your comic book also, है ना? It would be very difficult. Similarly, if we go to any chemist shop, हमें डॉक्टर के पास से आते हैं, डॉक्टर गिव अस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? इन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आर मेंशन, वी गिव टू द केमिस्ट शॉप, ये जो होते हैं फार्मासिस्ट, इनको देते हैं. दे इजिली गो ओवर, आराम से जाते हैं, दे टेक आउट द मेडिसिन. अब नाउ थिंक अबाउट इट, कितनी सारी मेडिसिन यहाँ पर होती है. हाउ कम he or she come, they know about the exact location where they are placed. उनको कैसे पता होता कि पैरासिटामोल यहाँ प्रेजेंट है, क्रोसिन इज हेयर, और एनी अदर मेडिसिन दे आर प्लेस्ड हियर. ठीक है, वो एकदम से जाते हैं, दे गेट इट. अगर वो किस वजह से कर पाते हैं? हियर यू कैन सी अगेन, पेन रिलीफ मेडिसिन आर हेयर, cold cough medicines are here, antibiotic medicines are here. So they organize their medicines like this because it will be easy for them. Otherwise एक ही कस्टमर पे लगे रहेंगे, अरे पैरासिटामोल लिखिए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है. He has to figure out this thing. So it will be very much, we can say, he get tired, और उसके पूरे दिन कुछ भी नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर वो एक ही मेडिसिन पे लगा रहा. So it's better to get organized. Similarly, let's move ahead. Okay. So जो क्वेश्चन सबसे पहले हमने किया, what we did, कि जो materials हैं that you observed around you are made up of different things. Let's imagine अगर हमारा wooden door की जगह if we had this paper और cloth door, क्या होता? That is the result, है ना? That is the result. Like storm, in heavy storm, or we can say heavy harsh conditions, what happened? सारा का सारा ये टूट जाता. Yes, लेकिन now we have wooden doors, we have iron or steel doors that help us to stay, we can say, or we can say to help us to survive in these kind of harsh conditions. Yes? Yes? Yes. So now let's move ahead. Now you have auditorium in your school. Yes, you have auditorium. Yes, you have auditorium. Now tell me, when you are sitting in your auditorium, are you able to hear outside noise? नहीं आता, है ना? नहीं आता. और जब आप ऑडिटोरियम में जो बैठे हो, या फिर आप नहीं बैठे, आप बाहर हो, और ऑडिटोरियम के अंदर कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है और सम एक्ट इज गोइंग ऑन, आर यू एबल टू हियर दैट? Yes, ठीक है. Now why so? Why so? What's the reason you are not able to hear outside noise when you are inside the auditorium? Because it is soundproof. What does it mean? कोई बता सकता है? If I say soundproof, yes, yes, able say yes. The sound outside will not come inside. Yes, so means soundproof means sound will not enter. Sound जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा. अगर यहाँ पर मेरे आगे let's say कोई मटेरियल लगा दूं
और साउंड यहां से आ रहा है, सो इट विल नॉट पास थ्रू इट, इसको पास नहीं कर पाएगा और आई एम नॉट एबल टू हियर दैट. Now, how to make a room soundproof? So here we use wood. So wood is a sound absorber. ठीक है, wood जो है, लकड़ी जो है साउंड को एब्जॉर्ब करती है. So because of that जो साउंड है वो अंदर नहीं आ पाता. But if instead of wood, if we use some other metal, कोई metal यूज कर ले, let's say we use here iron, क्या होगा, आवाज और ऊंची हो जाएगी, जो हम बोल रहे हैं या फिर जो बाहर का शोर है वो एकदम सुनाई देगा. सो मटेरियल के ऊपर इट डिपेंड्स कि वो क्या काम करेगा. ठीक है, सो लेट्स मूव. नाउ हियर यू कैन सी, डू यू नो विच मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स? कौन सी चीज है अभी एट प्रेजेंट जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए? Yes, plastic. We use plastic a lot. ठीक है, we use plastic and it is not natural. It is artificial. When we say artificial means it is getting synthesized or made in laboratory, in industries. Industries में बन रहा है, पेड़ों से नहीं आ रहा. It's not coming from any, we can say, natural source. And because of that, because of that, it's being chemical and it's harmful also. It's harmful. कैसे harmful है, किस वजह से? दो रीजन है. ये जैसे हमने यूज कर लिया, once we use it, it will not go away. मतलब कहाँ नहीं जाएगा, अर्थ से गायब नहीं होता. It will remain here for very very long period. ठीक है, and also अगर हम इसको जलाते हैं, लेट्स ट्राई कि चलो इसको अर्थ से हमने हटा ही देना है, लेट्स बर्न इट. सो व्हाट विल हैपन, हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो एयर को पॉल्यूट कर देगी. अगेन फिर से क्या होगा, वो एक गंदी हवा वी आर इनहेलिंग. सो दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक. ठीक है, प्लास्टिक का यूज जितना हो सके बेटा उतना कम करो. Try to come to the eco-friendly things. ठीक है, like you can use stainless steel utensil, you can use paper-based cups or straws. ठीक है, so use. ठीक है. Now coming to the next thing. अब आ जाते हैं कि जो हमारे ग्लासेस हैं, ठीक है, suppose I have this glass tumbler, let's say tumbler. Tumblers are made up of either steel, glasses or some other sort of material, but not of. अब आप कहोगे पेपर कप वाले तो आते हैं पेपर, बट दोज आर कार्डबोर्ड बेस्ड. ऐसे पतले से पेपर से नहीं होता. अगर इफ आई होल्ड इट, डू यू थिंक इट विल होल्ड द वाटर? क्या ये पानी को होल्ड करेगा? नो. इफ इंस्टेड ऑफ दिस मैं कोई कपड़ा लूं, कपड़ा क्या पानी को होल्ड करेगा? विल इट होल्ड द वाटर? Why so? Why so? Why so? क्योंकि if you notice पेपर में भी छोटे छोटे पोर्स हैं. It cannot hold, it will leak out. इसमें से लीक होना शुरू हो जाएगा. सेम केस विद द क्लोथ्स ऑल्सो, कपड़ों से भी पानी लीक होना शुरू हो जाएगा. लेकिन if we talk about glass, it's solid. ठीक है, इट्स हार्ड, इसमें से पानी लीक नहीं होगा. ठीक है, लेकिन if we talk about paper, if we talk about clothes, it will leak out water easily. ठीक है, so that's why our glasses, or we can say tumblers, are made up of what? They are made up of glass or steel or some any sort of thing, similar sort of thing. ठीक है, इसी वजह से बनता है. Is it clear? दो डिफरेंट चीजें डिफरेंट उसकी बनी है. लेट्स से एक जल्दी से मैं चीज पूछती हूँ, जो हम रेन में ड्यूरिंग रेनिंग टाइम वी वेयर रेन कोट, किस चीज के बने होते हैं रेन कोट? प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर. मुझे तो सिंथेटिक फाइबर सुनाई दिया.
पॉलिथीन, कई बच्चे पॉलिथीन हो रहे हैं। ओके ओके ओके, लेट मी टेल यू, इट इज मेड अप ऑफ रबर। रबर होता है वो, ठीक है। अब वो रबर कैसा होता है, हाँ आजकल पॉलिथीन टाइप भी आ गए हैं, बट मेनली जो मोटे वाले होते हैं दैट कैन लास्ट फॉर लॉन्गर, सो दे आर रबर बेस्ड। नाउ व्हाई दे आर नॉट मेड अप ऑफ सिंपल क्लोथ्स? नॉर्मल जो भी जैसे हमने कपड़े पहने उसके क्यों नहीं होते? ओके, अर्जुना सेड समथिंग, भरत रत्ना से मिडल रो फर्स्ट बेंच गर्ल। वहीं खड़े होके बोलो बेटा, वहीं से बोल दो अपनी सीट पे खड़े होके। आपका एक्चुअली माइक नहीं वर्क कर रहा भरत रत्ना, माइक ही नहीं वर्क कर रहा है, योर माइक इज नॉट वर्किंग। This one source is the water. यस बेटा। Yeah, ma'am, because this one close absorb water. Yes, it's waterproof, so water cannot enter or go beyond that area, ठीक है। जो हमने अगर रेनकोट पहन लिया तो पानी उसी के ऊपर से निकल जाएगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। आई होप ये मटेरियल्स क्यों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यू अंडरस्टूड दिस थिंग, क्यों अलग अलग चीजें जो अलग चीजों की बनी हुई है। लाइक यू आर सिटिंग ऑन वुडन डेस्क, ठीक है। आपके जो बैग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ क्लोथ्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ वुड। अगर लकड़ी के बैग होते तो क्या होता? इट वुड बी इजी फॉर यू टू कैरी दोज बैग, है ना। डिफिकल्ट हो जाता, हार्ड हो जाता, है ना। सो दैट्स व्हाई कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बना है देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस, ठीक है, ऐसे नहीं बन गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक, अब मैं आपको एक स्टोरी पे लेके जा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। दिस गर्ल इज इन द किचन, क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, नोटिस करो। So you can see copper, this is copper, this is stainless steel and this is earthen pot. पीछे भी स्टील के बर्तन है। You can see she is wearing very nice jewelry. Yes, jewelry is visible. Yes. So can you tell me what you notice here? क्या अलग सा दिख रहा है, कुछ है इसमें? Is there any difference here? Yes. 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 Arjuna say yes. Second last bench girl. Arjuna. Copper is shining. Yes, copper is shining here. Her jewelry is shining. No, Her jewelry is not shining. not that much. Not that much, but is it shining or not? Yes, it's shining, है ना। अब that's good बेटा। अब those object, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, चमकते हैं, शाइन मीन्स दोज रिफ्लेक्ट लाइट्स, और वी कैन से आई विल टेल यू दैट आल्सो, बट बिफोर दिस नॉर्मल समझते हैं पहले। जो चीजें शाइन करती हैं, चमकती है, उनको हम क्या कहते हैं, लिखो, lustrous. Lustrous. Lustrous means object who shines. Write down, lustrous means objects who shine. वो ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं, ठीक है। नाउ अर्दन पॉट, अर्दन पॉट जो मिट्टी का खड़ा होता है, वुडन जो होता है, दे डू नॉट शाइन, सो दोज आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मीन्स जो शाइन नहीं करता, जो चमकता नहीं है। ज्वेलरी शाइन करती है, चमकती है, ठीक है, एक्सेप्ट ज्वेलरी। यू कैन सी दिस स्टेनलेस स्टील स्पून, कैन यू सी इट शाइनिंग? It's shining. Now I have this wooden log piece. Do you think it's shining? Not shining, है ना? So from here we come to note कि हम objects को किसके basis पे classify कर सकते हैं? Are they shining or not? Are they lustrous or non-lustrous? ठीक है? So let's go.
अब अचानक से समथिंग हैपन, क्या होता है जिसमें आपको कुछ नजर आएगा? कैन यू नोटिस समथिंग हियर? लाइट चली गई उसके घर में, लाइट हैज गॉन. So Yes. now what happened? Can you see now here shiny objects? Yes, only shining objects are visible to us. Her jewelry, these copper utensil, stainless utensil, and the stainless containers. Only these are still shining. ठीक है? So now these we can easily say that these are lustrous objects. और यहाँ पर अभी घड़ा है, that is not visible to us, but it is here and it is non-lustrous. Is it clear? Lustrous क्या होता है? Non-lustrous. देखो देखो जो हमें दिख रहा है अब इस टाइम लाइट जाने पे, दैट इज लस्ट्रस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई ज्वेलरीज, जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गोल्ड और मेटल्स, प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? क्यों मम्मा जो है या पापा जो है गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी पे फोकस करते हैं? व्हाई दे डोंट बाय प्लास्टिक वन? बट यस, अच्छा हैंड रेज करो, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. यस, एबल, एबल से आ जाओ, लास्ट बेंच बॉय आ जाओ जल्दी से. एबल, लास्ट बेंच बॉय, कॉर्नर रो. यस बेटा, वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली बेटा. बिकॉज दे आर शाइनिंग. नो, नो तो मुझे सुनाई देगा. आफ्टर दैट आई एम नॉट एबल टू हेयर व्हाट यू आर सेइंग. Expensive, that's why they want to buy, they want to spend money. आजकल के बच्चे that is thinking like that, their parents are investing or they are saving by buying gold, है? Okay, but that is not the case. जब हम प्लास्टिक और when we are comparing gold, we are talking about here because gold is shining. ठीक है, वो शाइन करता है. पार्टी में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे वाओ क्या ज्वेलरी पहनी है. हाँ, इट्स सो यू नो वी कैन से शाइनिंग ज्वेलरी और वेयरिंग राइट नाउ. प्लास्टिक को कोई बोलेगा कि प्लास्टिक के आप पहन के गए हो बीड्स कि वो शाइन कर रहे हैं, है ना? कोई नहीं इतना तारीफ करेगा. बट व्हेन वी आर वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी, एवरीवन प्रेज और वी कैन से दे से यस व्हाट अ ज्वेलरी यू आर वेयरिंग राइट नाउ, है ना? अब ये तो नहीं है कि सिर्फ गोल्ड हम जो खरीद रहे हैं सिर्फ इसीलिए फॉर आवर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. हाँ, सो दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया. उसको थोड़ा दूर कर देते हैं. फाइनेंशियल हम किसी और दिन पढ़ेंगे, फाइनेंशियल कैसे हम सेविंग करेंगे. ठीक है, सो इट्स आई कैन से दैट आजकल की जनरेशन यू नो बिट एडवांस, बिट कंसर्न अबाउट देयर सेविंग्स और फाइनेंशियल थिंग्स. ओके, सो अभी के लिए किस लिए हम जो गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं? बिकॉज इट इज शाइनी इन अपीयरेंस. ठीक है, दैट्स द रीजन. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग पे. चलो, अब अगर हम कहें सारे के सारे मेटल्स, ओके, और या जो भी लस्ट्रस चीज है, जो भी चीज शाइन कर रही है, डू यू थिंक दे आर मेटल्स ओनली? नो. लाइक कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? यस, तो यस, हाँ, यहाँ पर यू कैन सी newly polished wooden surface or floor tiles, you can see they are shining but they are not metal, है ना? They are not metal, still they are shining. So we can say yes, this statement is wrong. ठीक है, जो भी चीज चमक रही है वो सोना नहीं है. ठीक है, एक कहते हैं ना जो भी चीज चमक रही है वो सोना नहीं है, that's true. ठीक है, here you can see this wooden door, here you can see tiles, they are shining but they are not metal. Is it clear? Is it clear, beta?
तो आज के सेशन को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, ठीक है? विद दिस